Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister of Assam. He's being adorned with a Karbi jacket, a Karbi polo. O Menteri Rangba ka Assam o Himanta Biswa Sharma ula play ya ka Karbi Hampton bat ula bu mau nong rimru na ka bantay ya ka hostel cum commercial building ha Shillong. Kani ka Karbi Hampton ka don ha European Ward Marpersha ya ka Pine Mount School. Hagani ka sngi la don lang u Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous District Council u CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council u CEM ka Jainte Hills Autonomous District Council bat ki he sarkar na Assam. Member of Karbi Autonomous Council, Dr. Tulirang Rohanson, to kindly do the honor of welcoming him. He's being adorned with a Karbi jacket, a jamborong, a poho, and jambali atol. We welcome you and we're honored to have you in our midst, sir. Also, we would like to At the very outset, I would like to congratulate Tuliramji and the entire members of the KAAC for having today achieved a great milestone of completion of this particular building, for which I know that for a very long time, the Honorable CEM has been continuously monitoring, making multiple visits to Shillong, and ensuring that the project finish as quickly as possible. So I would like to take this opportunity to congratulate him and the entire team of KAAC, and of course Dr. Himanta Biswa Sharma ji, under whose leadership in the state of Assam, all different sections of society and all different areas and communities are getting the kind of support and attention that they deserve. And today's particular event is another shining example of his leadership and of his commitment to the people of Assam and also to the people of different communities, irrespective of which caste or creed or religion they belong to. But for all the people, his commitment to ensure that there is overall development of Assam and ensure that there is an inclusive development of Assam. So I thank him and congratulate him and Dr. Tuliram on this great achievement that has been done today out here. साथ मिलकर आगे बढ़ना है। हमारे बीच में छोटे-छोटे इश्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसा हर सोसाइटी में होता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग प्रॉब्लम्स के बिना रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन हमारी सोच जो है, जो जिस तरीके से हम लोग एक चीज को देखें कि भाई जो भी कठिनाई या प्रॉब्लम हमारे सामने आए, हमें मिलकर इसका सामना करना है, इसे हमें मिलकर सॉल्व करना है, इसे हमें मिलकर हमें इसका समाधान ढूंढना है। ये आज का एक बहुत ही जरूरी मैसेज है। आप सबको मालूम है, आज इस स्थिति में 50 साल के बाद भी मेघालय और असम के बीच में अलग अलग बाउंड्रीज के इश्यूज आज भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से असम सरकार, मेघालय सरकार और भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने मन में एक सोच लेकर ठानी हुई है कि हम लोग जो भी हो इसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि बॉर्डर में रहने वाले लोग बहुत सालों से बहुत कठिनाइयों से जी रहे हैं, कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है और हर समय में, हर सेकंड में कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं और हमें लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं ये सिचुएशन में और इस समय में मैं इस मंच पर खड़ा होकर मैं आज हमारे असम के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आज उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में और हमारे स्टेट में
और भारत सरकार के नेतृत्व में पहली बार मेघालय और असम के बीच में कोई सीरियस बातचीत शुरू हुआ है। और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जगहों में बहुत एमिकेबली साथ मिलकर, पब्लिक को साथ लेकर हम लोगों ने काफी जगहों में सॉल्यूशन हम लोग ने निकाला है। मुझे विश्वास है कि अगर हमारा मन, हमारी सोच, हमारा मकसद, अगर हम लोग एक साथ मिलकर, सबको साथ लेकर चलकर बातचीत से सही तरीके से आगे बढ़े, मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम लोग बाकी जगहों का भी हम लोग कोई ना कोई समाधान निकाल पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। और मैं चाहूंगा इस मंच पे खड़ा होकर, आज हमारे जयंती हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईएम नहीं है, लेकिन बाकी हमारे सीईएम्स हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, मेघालय सरकार है। मैं चाहूंगा कि हम लोग इस बातचीत को, हम लोग जैसे हम लोगों ने पिछले सालों में काम किया, उसी सोच से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और मेरा यही सभी से रिक्वेस्ट खत्म यही रहेगा कि जो आज हम लोगों ने एक मैसेज एक दिया है, आज एक यूनिटी का मैसेज, एक ब्रदरहुड का मैसेज, एक पीस का मैसेज, एक डाइवर्सिटी येट वननेस इन द नॉर्थ ईस्ट एंड एज बीइंग इंडियंस, ये मैसेज और इस स्पिरिट से हम लोग आगे बढ़े। और कहीं कहीं अगर कुछ कठिनाई या प्रॉब्लम भी हो, इसे हम लोग पीसफुल वे में हम लोग रिजॉल्व करें, इस सोच से हम लोग आगे बढ़े। यही मेरी आप सबसे विनती रहेगी। This is an important day for the people of Karbi Anglong. We have completed Hampton here in Shillong, and the next project, that commercial building as well as 100-bedded student hostel, will also come sooner than later. People of Karbi Anglong has a long bond with the people of Meghalaya. We share our boundary and we are friends. That is why a Karbi Bhavan in Shillong is very, very important milestone for all of us. एक तरफ हमारा लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हमें जल्द ही जल्द ये सारे डिस्प्यूट खत्म करना चाहिए। एक सकारात्मक प्रोसेस हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ब्लेसिंग किया, सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको ब्लेसिंग किया, और आज हमें बहुत सारे इलाका का डिस्प्यूट भी थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्कशन हमने सॉल्व करने में कामयाब हुआ। आज मेघालय ही नहीं, थोड़ी दिन पहले असम और अरुणाचल प्रदेश का भी जो डिस्प्यूट था, हमने काफी हद तक उनको भी रिजॉल्व किया। और मैं मानता हूँ कि हमारे उत्तर को हम एक साथ ही रहना है। जियोग्राफी nobody can change. We have to live together as a neighbor, whether today, tomorrow, or in a days to come. Always Assam and Meghalaya has to live as a neighbor. There is no other option. Our geography is same, our area is same, and I strongly believe that we have to develop together, and then only we can achieve our goal. We can fulfill the aspiration of the young generation of North East region. आज हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी समय है। भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व की विकास के लिए 100 तरफा काम शुरू हुआ है। पीएम डिवाइन जैसा बड़ा स्कीम लिया गया है, और साथ साथ में स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस जैसा अच्छा कदम, और साथ में एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ के एक नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया, और उनका बेनिफिट ना खाली असम को मिला, साथों साथ सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स को आज ये बेनिफिट मिल रहा है। देखते देखते हमारे नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट का राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा हो गया, 4 लेन 6 लेन, साथ साथ में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा, इंटरनेट का कनेक्टिविटी बढ़ा, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में
काफ़ी सारे नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोला। मैं परसों दिन एक सभा हुआ था, हमारा एक कोई सारे गेस्ट आए थे असम का बाहर से, नॉर्थ ईस्ट का बाहर में। एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ एट द साइकोलॉजिकल लेवल कि आज हमारा नॉर्थ ईस्ट का सारे जो बच्चे असम का बाहर, उत्तर पूर्व का बाहर पढ़ता था, एक समय दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता था। They were asked that whether Meghalaya is China or in India. They were asked whether Manipur is in China or India, whether which part of Karbi Anglong is there, whether that is in India or elsewhere. असम कहाँ है? आज वो सिलसिला खत्म हो गया। नॉर्थ ईस्ट और जो एक इंडिया का टोटल इंटीग्रेशन का, साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम था, आज वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हुआ है। जैसे आज हम उत्तर पूर्व का मुख्यमंत्री का दो रूप से, अगर आज हम भारत का और कोई प्रदेशों में जाते हैं, या असम का मुख्यमंत्री या मेघालय का मुख्यमंत्री जो भी हो, या मणिपुर और अरुणाचल का मुख्यमंत्री, हम लोग को भरपूर सम्मान मिलता है। और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए लोगों का दिल में, पूरा भारत का लोगों का दिल में एक आकांक्षा बना कि उत्तर पूर्व का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा एक राष्ट्रीय सहमति बना। स्पेशल पावर एक्ट शुड बी विथड्रॉन बिकॉज वी आर कन्विंस्ड that our people can now take care of law and order, will live in peace and harmony, will not require police or army, and will be able to take care of ourselves. I believe that in days to come, in the same spirit of brotherhood, in the same spirit of Northeast, we will be able to resolve the remaining problem between us. समस्या होता है, समस्या होना स्वाभाविक है, लेकिन समस्या समाधान करने के लिए पॉलिटिकल विल होता है, तो समस्या का हल भी निकालता है, समस्या समाधान भी होता है। मेरा विश्वास है आगे जाके हमें हर समस्या का समाधान करने में हम लोग कामयाब होगा। और आज नॉर्थ ईस्ट का सारे स्टेट जैसे विकास का दौर में आगे बढ़ा है, हमारा ट्राइबल लोगों का बीच में जैसे एक रिनाइसा आया है, एक बहुत ही बड़ा एकेडमिक एंड कल्चरल रिनाइसा आया है, ये सारे मिलके मैं ही कंक्लूड कर सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का आज एक सुनहरा भविष्य का एक मोमेंट आया है। उसको हम लोग सबको मिलके कैप्चर करना चाहिए, ये मोमेंट को यूटिलाइज करना चाहिए, और ये मोमेंट का फायदा उठा के हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट और अपना स्टेट को विकास का रास्ता में लेके जाना है, ये मैं विश्वास करता हूँ।